हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो मजामा। ये है JCRC रेडियो 90.8 FM और आप सुन रहे हैं टीम ट्यूसडे। हाँ जी, और मैं RJ आयुषी आज की होस्ट मेक माई सेल्फ प्राउड मोस्ट। तो आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड अस्थमा अवेयरनेस डे। तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है लोगों को अवेयर करना, स्पेशली उन लोगों को जो अस्थमा से बहुत ज़्यादा संक्रमित हो या आपके कोई नोन फैमिली या फ्रेंड्स में होंगे जो अस्थमा से संक्रमित होंगे। तो चलिए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और थोड़ा जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों में संक्रमित है और पूरी दुनिया में अराउंड 30 करोड़ है। और जहाँ तक बात करें कि बहुत लोगों को ये लगता है कि एलर्जी और अस्थमा एक ही होते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। एलर्जी एक ब्रॉड टर्म है, बट अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी बट which means wheezing, coughing and shortness of breath. But allergy means where your body reacts to something unnormally which create itching, sneezing, rashes, vomiting, stomachache, etc. हमने ये तो जान लिया कि अस्थमा होता क्या है, पर अब ये जानते हैं कि वर्ल्ड अस्थमा अवेयरनेस डे मनाया क्यों जाता है। World Asthma Day is an annual event that takes place on the first Tuesday of May to raise awareness about asthma, a chronic respiratory disease that affects millions of people worldwide. This day is organized by the Global Initiative for Asthma (GINA), a collaboration between healthcare professionals and asthma advocates around the world. Asthma is a chronic disease that affects the airways in the lungs. People with asthma experience symptoms such as wheezing, coughing, and shortness of breath. These symptoms can be triggered by allergens, pollution, exercise, and other factors. Asthma is a significant health problem globally, with an estimated 339 million people affected by the condition. World Asthma Day aims to raise awareness about asthma, its cause, and how it can be damaged. Every year, the goal is different, but this year, they challenge to common misconceptions about asthma and educate people about the reality of living with the condition. On World Asthma Day, healthcare professionals, patients, organization, and advocacy group organize events to raise awareness about asthma. These events may include seminars, public talks, educational campaign, and community outreach activities. In addition to these activities, social media is also used to promote awareness about asthma and to encourage people to get involved. There are several reasons why it is essential to raise awareness about asthma. One of the main reasons is that asthma is a significant health problem globally. According to the WHO World Health Organization, asthma is responsible for over 4 lakh deaths every year. Many of these deaths can be prevented with proper management and treatment of the condition. Another reason why raising awareness about asthma is crucial is that it can help to reduce the stigma associated with the condition. Many people with asthma feel embarrassed or ashamed of their symptoms, which can lead to social isolation and reduced quality of life. By raising awareness about asthma, we can help to break down these barriers and encourage people to seek help and support. Raising awareness about asthma can also help to promote early diagnosis and treatment of the condition. Many people with asthma are not diagnosed until later in life, which can lead to complication and a higher risk of asthma-related deaths. By educating people about the symptoms of asthma and the importance of seeking medical help, we can help to ensure that people receive the treatment they need as early as possible. In addition to raising awareness about asthma, World Asthma Day also aims to promote research into the cause and treatments of the condition. Research into asthma is crucial for developing new treatments and improving our understanding of the condition. By supporting research into asthma, we can help to ensure that people with asthma receive the best possible care and support. At last, as a responsible citizen of India, let's make it our responsibility to help asthma patients rather than making fun of them, as it can save someone's life. Now, let's know about how an organization could plan and execute a successful World Asthma Day campaign.
So, Chitranshi, can you please tell the audience about what exactly this campaign is? Thank you, Ayushi, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए. A non-profit organization focused on respiratory health has decided to organize a campaign to raise awareness for the World Asthma Day. The organization's goal is to educate the public about asthma, its symptoms, and the importance of early diagnosis and treatment. They want to engage the local community, including schools, health clinics, and other organizations. So, we can say that this campaign is helpful to the sufferers as well as non sufferers as it educates them about the importance of early treatment. Also, we can say that it is a great initiative by the public and for the public. Okay, Chitranshi, such campaign must needs a lot of planning before execution. So, can you please brief us about the planning procedure? So if I talk about planning, so what organization does is that the organization start planning the campaign several months in advance. They create a team of staffs and volunteers which are responsible for planning and executing the campaign. The team set specific goals which identify the target audience and also create a outline the key messages that they want to convey. And also, the team decides to organize a week long campaign that includes several activities to reach out to the community. And now, if I talk about these activities, so these activities basically include distributing brochures and other educational material about asthma to school, libraries, and health clinics. Organizing a public event to raise awareness about asthma, where people can learn more about the condition and get free asthma screenings. Also, running a social media campaign that shares educational content about asthma and encourages people to get involved. So, we can clearly understand how the campaign is being planned. Once the planning is done, it's time to execute it. But the execution is also a difficult task. So, can you please share the insights of how a program is being executed successfully? So, if I talk about the execution stage, so what we do is that during the campaign week, the organization actively promotes their activities on social media, local newspapers, and other media outlets. The teams distribute flyers, brochures to schools, libraries, and they also collaborate with the local health clinics to reach out to the people with asthma. The public event is the highlight of the campaign. The organizations also secure a public venue and invites a healthcare professionals and asthma advocates to speak about the condition. The speakers usually share the valuable information about the asthma, its symptoms, and how to manage it. They also provide free asthma screening to people who attend the event. The organization, what they does is that the organization uses this opportunity to collect a contact information from attendees to continue to follow up with them in the future. Now let's talk about the social media campaign. So what social media campaign does is that it creates success. The organization creates educational content about asthma and share it across different social media platforms using relevant hashtags to create visibility. They also encourage people to share their personal stories about asthma, which helps to break down the stigma associated with the condition. Until and unless the feedback or the result is being generated, we cannot decide the successful rate of campaign. So, how can we assure that the campaign is a success or not? Now let's talk about the results. So the campaign is a success. The organization reaches a large audience and many people attend the public event and take advantage of the free asthma screenings. The social media campaign receives significant engagement and people share the educational content widely. The organization also receives positive feedback from community and is recognized for its effort to raise awareness about this asthma. Okay, so in last, I conclude that by planning and executing a well organized campaign, the non-profit organization successfully raises awareness about asthma and educates the public about the importance of early diagnosis and treatment. The campaign helps to break down the stigma associated with asthma and also provide people with the information they need to manage their condition effectively. The organization's efforts have a positive impact on the community and contribute to the overall goal of improving respiratory health. Thank you, Chitranshi, for enlightening us about such an important yet neglected campaign. Now, in the next segment, Sachin will narrate you the story of three siblings whose parents has died in a car accident. Dear Diary,
Today I'm writing this because I don't know what's going to happen with me next or where I'm going to be in the next few hours. But one thing I can surely say, that what I'm writing is not last, as I will come back again to complete my story. Me, the eldest son of my family, took all the responsibilities of my younger brother and sister when my parents died in a car accident. It was 2 years ago when we received a call from the hospital, and we were like gone for a moment. And till now, it has been coming in our minds that how suddenly it happened and we weren't able to do anything. Plus, being the eldest one, it was very difficult for me to handle my both siblings, in which one was only 8 years old at time, but somehow I did, which was the biggest challenge for me. From then to till now, we have been gone through a lot. बट वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता, बस आ जाता है. हमारे साथ भी वही हुआ. 1 हफ्ते पहले तक सब सही चल रहा था, पर अचानक एक दिन मेरे छोटे भाई यश की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं समझ नहीं पाया कि एकदम सडनली क्या हो गया, क्योंकि वो हर दिन की तरह उस दिन भी स्कूल गया था, पर उस दिन स्कूल से आके उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी. अगले ही दिन मैं उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया, जहां डॉक्टर ने मुझे बताया कि यश को स्टमक कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे. मैं ये सुन के थोड़ा सहम सा गया, क्योंकि कहाँ एक 25,000 की जॉब करने वाला आदमी 10 लाख रुपए लाएगा. बट यह बात मेरे भाई की थी, जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ. पर ये बात मैंने अपनी छोटी बहन को नहीं बताई. मैं नहीं चाहता था कि उसे इस बारे में पता चले, इसलिए मैंने उसे ये बात छुपाई. मैं यश के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जोड़ने लगा. फिर एक दिन यश अचानक बेहोश हो गया. मैं तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल भागा, जहां डॉक्टर ने उसे मेन वार्ड में रखा और कुछ समय बाद डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बताया कि यश को मेजर स्टेज का स्टमक कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट बाहर होता है. तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं यश को लेके बाहर चला जाऊं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए. मैं उस दिन बहुत रोया और उसी पल मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत मिस किया कि अगर वो यहाँ होते तो यश को संभाल लेते, पर मैं अकेले यश को कैसे संभालूं, क्या कहूँ उससे. कुछ हिम्मत ही नहीं हुई कहने की. फिर मुझे एक बात याद आई जो यश मुझे अक्सर कहा करता था कि भैया, हम जब भी कहीं बाहर जाएंगे हम सब साथ में जाएंगे. बस यही बात मुझे यश के रूम तक ले गई. मैंने यश को उठाकर कहा कि यश, हम बाहर जा रहे हैं. ये सुन के वो बहुत खुश हुआ और पूछने लगा कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं. मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला कि हम 3-4 घंटे में यहाँ से निकलेंगे. वो बोला ठीक है भैया. मैं रूम से बाहर आया और सोचा कि कहाँ जाना है उस बारे में तो मैं ही अनजान हूँ, लेकिन यही शायद हमारे रास्ते की शुरुआत थी. इसलिए मैं यश और मेरी छोटी बहन को लेके उन्हीं अनजान रास्तों पर निकल पड़ा जो कहाँ जाने वाले थे, जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था. मैं बस बिना कुछ सोचे निकल पड़ा था और उस सफ़र को मैंने नाम दिया था अनजान रास्ते. वाओ, व्हाट अ ग्रेट एंड इमोशनल स्टोरी. यार मैं तो सच में इमोशनल हो गई. सचिन की ये स्टोरी सुनकर ना मुझे भी मेरी खुद की लिखी हुई कविता याद आ गई, जो कि एक लड़की पे है जो वो सपने देखती है पर वो पूरे नहीं कर पाती. थी वो एक छोटे गांव से, सपने देखे बड़े ही चाव से. आसमान में उड़ना था परिंदों के जैसे, ऊंचाइयां छूनी थी अलकनंदा के जैसे. किस्मत की लकीरों से जीवन भर दिया, किस्मत की लकीरों से जीवन भर दिया. उड़ना हो या तैरना अपने सपनों को बुन दिया. सोचा था बनूंगी एक ऐसी लड़की, पूरे करूंगी सारे अरमान. इस दुनिया छोड़कर हो जाऊंगी अपने सपनों की दुनिया में विराजमान. थी वो सबसे बड़ी, थी वो सबसे बड़ी, जिसके कंधे पर थी जिम्मेदारी खड़ी. बन जा छोटे भाई की परछाई, तुझसे ही तो उसे आस आई. मान ले बात, कर ले स्वीकार, खुशियाँ खड़ी है चौखट पे साक्षात्कार. बढ़ने दो मुझे, आगे पढ़ने दो, गीत हो या कलाकृति एक बार शुरुआत तो करने दो. छोटी हूँ बड़ी नहीं हुई, पढ़ने दो मुझे, पैरों पर खड़ी नहीं हुई. घोट दिया उसके अरमानों का गला, घोट दिया उसके अरमानों का गला. तय हो गई शादी, जीते जी मर गई वो,
जब उसे पता चला। अपने सपनों को भूल नियति को कर लिया स्वीकार, अपने सपनों को भूल नियति को कर लिया उसने स्वीकार, खुशियाँ खड़ी है चौखट पे साक्षात्कार। तो ये थी एक छोटी सी कविता। पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि स्कूल क्यों ही जाना है। सुबह सुबह उठो, फिर वही डेली का रूटीन, वही बोरिंग क्लासेस, और किसी दिन गेम्स का पीरियड हो। जी तो होती थी, पर डर रहता था अंदर से कि कहीं हिस्ट्री वाली मैम या मैथ्स वाले सर ना वो पीरियड छीन ले अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन मज़ा जब आता था जब मम्मी टिफ़िन में गरम गरम हम सब की फेवरेट मैगी, पास्ता, आलू के पराठे या मसाले वाले चावल रखती थी और हम दोस्त मिलके छुप छुप के फर्स्ट पीरियड में वो खा लेते थे। जब बोरिंग क्लास में नोटबुक के पीछे तरह तरह के गेम्स खेलते थे, सिक्की, टिक टैक, बॉलीवुड, हैंगमैन, डॉटन, और उस टाइम मज़ा भी बहुत आता था। पर अब ये दिन कहाँ, अब तो जिम्मेदारी आ गई। फ्यूचर प्लानिंग में हम बिज़ी हो गए, ना हमें टाइम है और ना हमारे दोस्तों को। सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। तो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, या यूँ कहूँ कि मेरी यादें। तो चलिए जानते हैं कुछ और लोगों की पुरानी स्कूल की यादें सचिन के साथ। हाय एवरीवन, दिस इज सचिन और आज मैं यहाँ कवर करने आया हूँ वॉक्स पॉप, जिसका टॉपिक है इज गोइंग टू अ स्कूल वर्थफुल और वर्थलेस। सो अकॉर्डिंग टू मी, स्कूल वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वी मेक सो मच मेमोरीज विद आवर फ्रेंड्स और टीचर्स। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा स्कूल हैपनिंग था तो लोगों का स्कूल भी हैपनिंग हुआ हो। तो आज हम आए हैं यहाँ पे और जानते हैं लोगों के व्यूज़ और ओपिनियंस और उनकी स्कूल लाइफ कैसी गई थी उनके टाइम पे। चलिए आइए बात करते हैं। हाय, सो आज मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप स्कूल जाती थी, और अगर आप स्कूल जाती थी तो आपको स्कूल जाना क्यों पसंद था? मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। दोस्तों के साथ मस्ती करना, प्लेग्राउंड में खेलना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इसमें बहुत मज़ा आता था। फिर और असेंबली में लेट जाना कि मैम लेट आए, इसने लेट कर दिया, उसने लेट कर दिया, इसमें बहुत मज़ा आता था। साथ ही साथ जो पढ़ाते थे टीचर, जो काफ़ी अच्छा था, जो लर्निंग, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है वहाँ से, वो काफ़ी अच्छा है। जो फ्यूचर गाइडेंस वो हमें देते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सभी चीज़ें सुनने में और अब रियलिटी में देखने में काफ़ी सिमिलैरिटी लगती है कि हाँ वो सही बोलते थे, कि हाँ ऐसा होता है। और दोस्तों के साथ जो मजाक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, कि हाँ ये ऐसा ही बोल रहा था, इसने ऐसा ही किया, इसमें बहुत बहुत मज़े आते थे। क्लास के बीच में लंच करना, दोस्तों को टिफ़िन लेके भागना, चुपके से टिफ़िन खाना क्लास के बीच में, दूसरे दोस्तों को डांट पड़वाना मैम से कि हाँ मैम ये ऐसा कर रहा था, इसी ने किया है, उनको क्लास के बाहर निकलवाना, मैम से के साथ हंसी मजाक करना। कभी मैम नहीं आती थी तो जब गेम्स का सब्स्टिट्यूशन लगता था तब बहुत मज़ा आते थे कि हाँ चलो मैम नहीं आए, अब गेम्स पीरियड मिल गया है, गेम्स खेलने जाएंगे। और जब गेम्स के सर नहीं आते थे और किसी मैथ्स वाले सब्स्टिट्यूट लग जाता था तो बहुत दुख हो जाता कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा तो गेम्स का पीरियड था, आज तो हमें गेम्स ही खेलना है, हम क्यों मैथ्स पढ़ेंगे आज के दिन, क्यों नहीं होगा कोर्स, बट हमें नहीं पढ़ना। वेरी नाइसली आंसर द क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा स्कूल लाइफ में? मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्कूल में, अच्छे एक्सपीरियंसेस। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सिंगिंग कंपटीशन। मैंने जब सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ सिंगिंग में ऑनेस्टली, बट हम लोगों ने रोज़ प्रैक्टिस की। इट वॉज अ ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन, हमने बहुत मज़े किए, टीचरों से डांट भी खाई है इनफैक्ट कि हाँ तुम लोग मज़े बहुत मार रहे हो, तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो उस चीज़ को। हम लोगों ने फिर सिक्योर की सेकंड पोजीशन। उसके बाद टीचर ने अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, तुम लोगों ने कितने ही मज़े किए हो, बट तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया लास्ट। तो मैं बहुत नर्वस थी स्टार्टिंग में कि हाँ कैसा होगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत बुरी हूँ सिंगिंग के मामले में। बट हाँ ठीक है, आई ट्राइड कि हाँ चलो करते हैं, लेट्स डू दिस, कि हाँ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट लेट्स डू दिस। फिर उसके बाद जब मैंने इंटर हाउस डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था तो वी वर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 1 वीक, मोर देन अ वीक। और एट लास्ट एक दिन पहले हमारे डांस का जो सॉन्ग है वो चेंज करना पड़ा था ड्यू टू सम रीज़न।
फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस की पूरा एक दिन, और नेक्स्ट डे जब हमारा कंपटीशन था हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए थे। और सर अप्रिशिएटेड अस कि हाँ तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, एक दिन में इतना सब कुछ करना, पहले पोजीशन सिक्योर करना, इट्स नॉट इजी टास्क, बट हाँ वी डिड इट, वी परफॉर्म, क्योंकि हमें था कि हम लोग कर सकते हैं, और हम लोगों ने किया, हमने प्रूव किया कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। वी प्रूव देम कि हाँ एवरीथिंग वी कैन डू, अगर अपन सोच ले तो। उसके बाद मैंने कई एंकरिंग्स भी की है इवेंट्स में, स्कूल में कुछ फंक्शंस वगैरह होते थे उसमें, असेंबली में एंकरिंग की है। बहुत नर्वसनेस होती थी पहले कि क्या होगा नहीं होगा, फिर मैंने सोचा लेट्स डू ना, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर करते हैं। फिर मैंने किया, बहुत अच्छा मिला, टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी स्किल्स है तुम्हारी, तुम कर सकते हो एंड ऑल। और ऐसे करते करते और भी कई एक्सपीरियंसेस है, बट दीज आर द फेवरेट एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरों लोगों के व्यूज़ और ओपिनियंस। हाय, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप स्कूल जाती थी, और अगर आप स्कूल जाती थी तो आपको क्यों पसंद था स्कूल जाना, और आप क्या क्या वहाँ मस्ती करती थी, प्लीज़ हमें बताइए। Friends. The reason I used to go to school were my friends. They were the reason I used to go to school daily, and I even got award for 100% attendance. And I think it's not only me, almost everyone, like 99% of the students goes to school for their friends only. And being a girl who is so involved in school academics as well as co-curricular activities, I had a lot of friends, including my juniors, my classmates, as well as my seniors too. Also, during my school studies, I have been transferred to 3 different schools where I met people with different backgrounds and different perspective. So at first, I had thought I will not be able to make friends with them as they already know each other and I am a newbie. But I even do not remember how I got so much connected with them. And also, you might have heard that school friends does not stays with you after school, but I still have almost all of them, Mohit, Ashish, Jhalmil, and all of them. And I would like to thank them to make my school journey a beautiful and a memorable one. बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा है स्कूल में। There are a lot of experiences and learnings we do get from our schools, and it might not have been that fun at that time, but if we do remember them now, it's full of laughter, like how crazy we were at that time. If I have to choose one experience, then I would like to share the experience of my New Year celebration of 2020, as it was the first without my parents and also first with my friends and teachers, as we were on a trip to Bangalore, Ooty and Mysore, including some local sightseeing places of Kerala like Munnar and Kovalam, which were so beautiful, like they were literally worth taking a while to gaze on the surroundings more and more. Also, we have been to Anaimudi, for which you must have known that that's the highest peak of Western Ghats, and exploring that place was a great experience being the geography student. That was my first time when I celebrated New Year without my family, as this was scheduled during the winter breaks of 2019, which included the New Year celebration, but also there I got a new family where my parents were not there to give me blessings, but my teachers were. My siblings were not there to give me a hug or to dance or to enjoy, but my friends were. So it was a good experience. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत अच्छा लगा आपके आंसर्स और व्यूज़ और ओपिनियंस जान के। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज का ये एपिसोड हम एंड करते हैं इसी क्वेश्चन से, और हम आशा करते हैं कि आप इसे सुने, और आगे भी हम ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिएगा ऑन 90.8 FM। वाओ यार, मज़ा ही आ गया सच में। स्कूल की यादें ना बेस्ट होती है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडे, दैट इज अबाउट राजस्थान फ्रॉम आस्था यदुवंशी। राजस्थान भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। यह भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है।
राजस्थान अपने शाही वैभव, संस्कृति, किलों और महलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था और हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस अथवा राजस्थान स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,293 वर्ग किलोमीटर है और इस राज्य का पश्चिमी भाग भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भाग भी है। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान की आधिकारिक भाषा राजभाषा हिंदी है। क्षेत्रीय भाषा राजस्थानी और मेवाती है। अंग्रेजी भाषा इस राज्य की अतिरिक्त भाषा है। राजस्थान राज्य का राजधानी पोशाक बहुत ही अनोखा व सुंदर पोशाक है। यहाँ विभिन्न जातियाँ रहती है और जाति के अनुसार कपड़े भी पहने जाते हैं। गर्मी से सुरक्षा और मर्यादा बनाए रखने के लिए औरतें व महिलाएं सिर को ढकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े का उपयोग करती हैं, जिसे ओढ़नी या चुनरी भी कहा जाता है। महिलाओं के पोशाकें आमतौर पर नीले, पीले और नारंगी जैसे चमकीले रंगों में डिजाइन की जाती है। बड़े और बुजुर्ग सफ़ेद व रंगीन पगड़ी, धोती और कुर्ता ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। लोक संगीत राजस्थानी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। धार्मिक या भक्ति गीते, जिसे भजन के रूप में भी जाना जाता है, इसे अक्सर ढोलक, सितार और सारंगी जैसे संगीत के साथ गाए जाते हैं। राजस्थान राज्य का घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कठपुतली नृत्य, भोपा नृत्य, चंग नृत्य, तेरा ताली नृत्य, गैर नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। गंगौर, गज, तीज, दशहरा, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी त्योहार आदि राजस्थान का प्रमुख त्योहार माना जाता है। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध व्यंजनों में बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, मावा कचौरी, प्याज कचौरी और मिर्ची बड़ा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जोधपुर का घेवर, अलवर का मावा, अजमेर का कड़ी कचौरी, पुष्कर का मालपुआ, कोटा का दाल कचौरी और बीकानेर का बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ला पूरे भारत में स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटकों के लिए राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थल कई वर्षों से विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ कई अद्भुत किले व महल हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक राजस्थान भ्रमण करने आते हैं। राजस्थान राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम जल महल, हवा महल, चंद्र महल, जंतर मंतर, आमेर किला, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस आदि है, जहां लोग बड़े ही चाव से घूमने आते हैं। ओह अमेजिंग आस्था, मुझे तो इतना सब कुछ पता ही नहीं था राजस्थान के बारे में। आई होप हमारे ऑडियंस को भी कुछ नई जानकारी मिली होगी। हाँ, तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको एक बात बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि JCRC यूनिवर्सिटी का अब खुद का रेडियो स्टेशन है 90.8 FM, बट विदाउट सम कैची एंड मेमोरेबल स्लोगन इट्स नॉट बी दैट इंटरैक्टिव। सो इफ एनीवन यू हैव एनी इंटरेस्टिंग स्लोगन कैन मेल ऑन pandit.amandeep@jcrcu.edu.in.
तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बातें ज़्यादा हैं। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए JCRC रेडियो 90.8 FM। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में टीम ट्यूसडे के साथ।